So I'll take some, probably, there's some online student going to this question. Okay. Online students, if you have any question, you can ask. I am looking at the chat section. Good evening, everyone. My name is Vinay Babu, and I am director at Bano IS. So I will also introduce my background. I was selected for IFSC Authority through UPSC Civil Service Examination in 2020, and I worked there for 2 years after resigning, and then I joined the team and we started Bano IS. For that, I have cleared multiple examinations, including Assistant Provident Fund Commissioner by UPSC, Assistant Director in DDA, and then there are numerous more which I cleared. So that is my background. So now we will be talking about how to read newspaper and what should be our approach and what are the things we need to do, what are the things we need to avoid in the newspaper. So this is very important. The first thing is, why do we read newspaper? What is the importance of the newspaper? So if you look at prelims examination, the number of questions from current affairs are significant. While we generally stress more on Bano IS as an institute, we stress more on a static portion, but current affairs is there and it is significant, it cannot be ignored. The other thing is that even if there are no direct questions from current affairs, they inspire a lot of static questions. So if there's something in the news, let's say the inflation is high, then the UPSC can ask question about what is CPI or let's say WPI in the examination. So those are the things about the prelims examination. In the mains examination, if you look at general studies in social, the Indian society portion, you can expect question question directly from current affairs, which are there, whether it is gender issue, whether it is old age issue related to old age, etc., children's child labor, etc. Similarly, GS2 political development, international relation, most of the international relation is actually current affair based questions. You hardly get any static question in international relation in GS2. GS3, you have Indian economy, significant number of current affair inspired question that you will get. Then internal security, that is also whatever is happening in new development that you can expect, whether it is Northeast Naxalism or terrorism in Jammu and Kashmir, or maybe narco-terrorism related issue, etc. One can expect. Then you have environment, current affairs, science tech. I would say more or less current affair inspired question from the this science and technology post. So therefore, there is a significant weightage. Even if you go to ethics paper, you will use a lot of current examples from the current affairs, etc. So that is the important. The other thing is the second question I get is from a student that should we read newspaper or we should go for monthly magazine. Now in this, my comment is, let's say if you want to build muscles, you have to go gym daily. Magazine, there are a lot of institute which offer magazine. That one can go for, and we will also be coming from our own current affairs, so that is also going to happen. So once you can refer that, and we are trying to make it a different and better. That is the reason it will be in development. But I would suggest go for newspaper, because in newspaper, once we go through today's newspaper, you will realize why I am saying that. Once you go through newspaper, the concept develop on a daily basis. You are able to relate the topic. You understand what is important, what is not important. What is happening in the world, and which are the topic which are come from in prelims and mains examination. Therefore, it is very, very important to you read newspaper. Now, while it is also suggested that you make at least जो मेंस के लिए स्पेसिफिक इश्यूज हैं उन पे आप नोट्स बना सकते हैं, ठीक है, तो वो हम देखेंगे बाद में. फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, व्हाट आर द थिंग्स वी नीड टू रीड and what are the things we need to skip from the newspaper. I would say that if you are serious, you're an aspirant. Now, just reading the highlight would not be enough. You need to read, because you have to understand. In prelims examination, the question can be analytical. They need you to understand the concept, right? Now, only reading highlight will not. Similarly, in the mains examination, you have discuss sort of tailword or analyze, critically analyze and comment. Now for those, only highlight will not help, because you need to develop, you need to know the subject, the current affair based, whatever the issue is, you need to have an understanding of that. You need to have ability to explain that. You need to have ability to analyze that. So you need to know the topic very well. It is not possible that we only read headlines and we develop that understanding. So aapko padhna padega. So this is today's newspaper, Indian Express. If you guys have it, you can open it. Now, if you are an aspirant, you need to subscribe. Like my advice is go for physical copy, because it's much better, and on the online there's a lot of distraction. So buy a physical copy, subscribe to it and read it on a daily basis. That should become part of that. You have to read it no matter, by the end of the day, you should read newspaper. Now we'll go through, more or less the full newspaper to understand
what is the kind of thing we need to read, and what are the topics or news we need to avoid right now. So today we have, let's look at this is today's newspaper, September 13th. For all the online student, you can if you have access some you can download the newspaper, or you can look at the news, etc., or you can just continue to watch it. You would understand what is I'm trying to explain here. So today Sitaram Yechuri, who has been one of the very prominent leader, he passed away. So this is something you can read because he has been a significant figure in politics. You can read, but there will be a lot of details about his life, probably not relevant for the examination. So you can read something, but that is that has a, I would say, limited utility. And he's a very respected leader, so no disrespect to him. He has been, he was a very respected leader. Now the second thing is, Chief Minister of Bengal has said something. I apologize to people of Bengal, ready to quit for that. Now these sort of news are, this is always, this will be news. This tells you something what is going on in the country. The front page tells you what is going on in the country. So you understand the women's, issue and the sexual assault case has brought this issue of, sexual violence in the prominence. Now, specific of the case, for example, this case you can write as an, as an example that what women are going through it, right? So you can write as an argument that, this case has brought in prominent the sexual violence and, the women's issue in the highlight. However, the specific of the case may not be very relevant. We can read and we can know about them. So Asif and Fatima, right? So specific of the case may not be very relevant in that sense, but it is a case which we all are following, and we understand what how wrong it has been. What has happened with the trainee doctor, which was how wrong it was. It is very painful for anyone to see this. But specific of the case are not as such. You can read it, but not very relevant. Now, then we talk about the External Affairs Minister is mentioning here, Jaishankar says 75% of the disengagement problem with China sorted out. Now, this helps you understand that this issue is also, of course, important with the front page of the case, and China border issue remains always important. So we are working on that, right? So that is something you should understand from the perspective of that. But let's say there will be a lot more detail. Bigger issues has been sorted, something like that. You can read that. But there are there are minute, sometimes there are minute detail about what is being between two, let's say discuss between two important official in this position. वो न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा कि डिस्प्यूट किस एरिया में है, ये पूछ सकता है, ठीक है, तो वो आप उससे जान सकते हैं। या आपसे पूछा जाएगा कि चाइना के साथ इशू है, मान लीजिए बॉर्डर इशू है, इज एन इंपॉर्टेंट इशू, ठीक है, तो आपको चाइना के साथ बॉर्डर इशू पर होना चाहिए, बट व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग डिस्कस नेगोशिएटेड इन द माइन्यूट डिटेल इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट। तो आपको इशू समझना है, बहुत ज्यादा उसके डिटेल में जाने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। देन देयर इज लॉट मोर न्यूज व्हिच इज इनको शूट अक्यूज और शूट मी रेप विक्टिम, अनदर rape case which has happened in Madhya Pradesh. So that's there. Then Madras High Court judge in home loan dispute, FPI bonds hearing outside India. Now, so I would say this is not really important for the UPSC examination. This case related to outside that. Huda Karwal, this is all politics, which is which goes on. And as such, I would say is not important for the UPSC examination. तो आप देख सकते हैं कि हाँ इलेक्शन होने वाला है, यहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हैं, बट इसमें यूपीएससी जैसा रेलेवेंट ऐसा कुछ होगा नहीं। अगर इलेक्शन कमीशन का कुछ कमेंट आता है या कुछ किसी चीज को वो इन्फोर्स करते हैं तो हम उसको पढ़ सकते हैं, बट ऐसा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं, ठीक है। नाउ दिस इज वन इंपॉर्टेंट थिंग बिहाइंड रेयर शिमला कम्युनल, तो कम्युनल वायलेंस का केस हुआ है, ठीक है। तो ऐसे केसेस आपको पता भी इनको जब आर्टिकल पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको पता भी चलता है कि ये व्हाट वुड बी द फैक्टर्स ऑफ जैसे कम्युनलिज्म एक टॉपिक है हमारे सिलेबस में, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में, तो आपको पता चलता है कि कैसे कैसे फैक्टर्स की वजह से, ठीक है, कम्युनल वायलेंस हो सकता है। तो ये न्यूज मैं बोलूंगा उस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। फिर कई बार क्या होता है कि जैसे आपको केस इथिक्स में केस स्टडी आ सकती है कि कम्युनल वायलेंस की टेंशन ये खड़ी हो गई है, ठीक, इस रीजन से, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या वे आउट है, ठीक है। तो उस केसेस में भी जैसे मान लीजिए ये केस अगर अभी जो हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए जो स्टेप लिए जा रहे हैं, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेशन लेगा, तो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो दे कैन बी हेल्पफुल, दे कैन वाइडन योर होराइजन कि आपको केस स्टडी में सजेस्ट क्या करना है, ठीक है। कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन में आपको कभी रख दिया जाता है कि आप ही आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना दिया जाए और ऐसी कंडीशन दे दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, कैसे रिजोल्व करेंगे। तो ये सारे जो रियल लाइफ में होता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑफकोर्स जो मेजर लेते हैं ऐसे ही लेते हैं जो इफेक्टिव हो, तो आपको उससे आइडिया लगता है कि क्या करना, ठीक है। सो दिस आर द थिंग। दिस पेज पे वही है, फर्स्ट पेज का जो होता है कंटिन्यू होता है, ठीक है, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लगे तो आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट, नाउ दिस इज रिलेटेड टू दिल्ली 2020 राइट केस एक्सेट्रा। तो ये प्रोग्रेस चलती रहती है, ठीक है, और मतलब जो भी केस चलता रहता है बहुत ज्यादा रिलेवेंट मैं बोलूंगा यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से वैसे नहीं रह जाता है, ठीक है।
देन हाँ, मैं ये आपको बताना चाहता था थोड़ा बहुत, जैसे कुछ कुछ चीजें होती है, कई बार एड्स भी होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से एड्स आ रहे हैं, तो वो भी आपको देखना होता है। मान लीजिए कोई स्कीम पे बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग हो रही है, तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द गवर्नमेंट, तो यू शुड लुक एट दैट, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए हाउसिंग फॉर ऑल गवर्नमेंट एडवर्टाइज करती है कई बार, तो आपको वो देखना चाहिए, ठीक है, कि हो सकता है वो स्कीम ही पूछ ली जाए आपसे एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट कुछ चीज को बार बार एम्फेसाइज करेगी, तो आपको वो थोड़ा सा उस पर स्कीम्स, उस स्कीम को वैसे पढ़ लेना चाहिए। ये सिटी की न्यूज है। अब दिल्ली सिटी की न्यूज ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर सिटी और जो एलजी का जो इशू चलता रहता है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो आपको फॉलो अप करना होता है, बिकॉज वो एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। उसका एक इशू क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जामिनेशन में, आई थिंक 2 बार आ चुका है एग्जामिनेशन ये क्वेश्चन, दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो सेटअप है, ठीक है, उसके ऊपर, तो वो आप देख सकते हैं। अदरवाइज दिल्ली की न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, इसमें कई बार आपको ये पता चलता है कि जो म्यूनिसिपल गवर्नेंस है, ठीक है, उनके क्या चैलेंजेस हैं, जैसे पानी भर जाना, ये सारे जो चलते रहते हैं, बार बार चलते रहते हैं, ठीक है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, तो उस हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा थिंग्स, अदरवाइज इट मे नॉट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। तो दिस वी टॉक्ड अबाउट, ओके, दिस इज आल्सो नॉट रिलेवेंट डिसीजन, दिस इज आल्सो वंस अगेन पॉलिटिक्स एक्सेट्रा, तो आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं, यू कैन जस्ट ब्रीफली गो थ्रू दैट व्हाट इज कुछ इंपॉर्टेंट इशू है, कुछ बोला जा रहा है, सब्सटेंशियल इशू, अदरवाइज देयर इज नॉट मच आई वुड से हियर। देन देयर इज अ गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पेज। इसमें मैं बोलूंगा जो पॉलिटी के जो इशू हैं, गवर्नेंस के इशू हैं, वो आते रहते हैं, ठीक है। सो लेट्स वी विल टॉक अबाउट द पुतिन प्रपोजल बायलैटरल विद मोदी ड्यूरिंग ब्रिक्स समिट ऑन 2020। तो अब नए, अगर आप यू जस्ट स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन, नाउ यू नीड टू नो प्रॉब्ली व्हाट इज ब्रिक्स, ठीक है। आपकी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, ये ब्रिक्स है क्या, ये कब बना था, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, ठीक है, कुछ क्या काम चल रहा है, तो ऐसे आप देख सकते हैं। वैसे समिट होगा तो आर्टिकल आएंगे उसके ऊपर, ठीक है, बट इफ यू वांट टू रीड इट, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट चेक इट ऑन इंटरनेट एंड दी दैट। द सेकंड इज हियर, हाँ, एलिगेशन ऑफ क्राइम नो ग्राउंड फॉर डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। नाउ ये जब आता है, जब सुप्रीम कोर्ट बात करता है, तो दैट इज बिकम्स एन इंपॉर्टेंट इशू, स्पेशली अगर वो किसी फंडामेंटल राइट्स या राइट्स की बात कर रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बिकॉज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि फंडामेंटल राइट पे अगर बोल रहे हैं, तो वो तो हमारी सिलेबस का ही पार्ट है, और अगर कुछ और भी जजमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, कुछ आर्गुमेंट दिया जा रहा है, तो दैट कैन बी समथिंग विच एन इंपॉर्टेंट इशू विच इज गोइंग ऑन। जैसे उन्होंने यहाँ पे बोला एलिगेशन ऑफ क्राइम नो ग्राउंड फॉर डिमोलिशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो जो बुलडोजर जस्टिस की जो बात चलती रही कि किसी ने मिस्टेक की, उसके घर पे जाके आपने बुलडोजर चला दिया, तो सुप्रीम कोर्ट हैज बीन सेइंग दैट इज अगेंस्ट जो जुडिशियल प्रोसीजर होना चाहिए, उसके अगेंस्ट है। तो उन्होंने वहां पे फिर से यही बोला है कि किसी, अब इसमें एक और बात ये भी कि अगर फैमिली में किसी एक ने किया, तो क्या आप सबका घर गिरा सकते हो, फैमिली में तो और भी लोग हैं, तो उनकी तो कोई गलती है ना, तो दो ज्यादा थिंग्स बीइंग, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। और स्पेसिफिकली इसमें अगर किसी राइट्स की बात हो रही है, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको समझना चाहिए, तो इसमें हमें डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, वी कैन नॉट जस्ट रीड द हेडलाइन। ये जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें बात कर रहे हैं किसी इंपॉर्टेंट जो हमारे सिटीजन्स के राइट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। फिर हम आएंगे सेंटर्स टेकिंग मोर 5 अपोजिशन रूल्ड स्टेट फ्लैग फाइलिंग टैक्स स्कीम। तो यहाँ पे 5 जो अपोजिशन के स्टेट हैं, उन्होंने बोला है कि सेंटर इज टेकिंग मोर शेयर। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें बात होती है यहाँ पे ना, चौथी पांचवी लाइन के मतलब थ्रू स्ट्रेंथन फिस्कल फेडरलिज्म। तो जो फेडरलिज्म है वो आपका टॉपिक है, ठीक है। तो और फेडरलिज्म का पार्ट ही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन होता है, दूसरा होता है, सारा होता है। तो फिस्कल फेडरलिज्म का इशू एक इंपॉर्टेंट इशू है, बिकॉज देयर आर वर्टिकल इंबैलेंस, जिसमें बोलते हैं फिस्कल फेडरलिज्म में कि सेंटर के पास ज्यादा है, स्टेट के पास कम है, एंड देयर आर हॉरिजॉन्टल डिफरेंसेस, सम स्टेट गेट्स हायर, सम स्टेट गेट्स लो, ठीक है। इवन यू अकाउंट फॉर द पॉपुलेशन एक्सेट्रा, उसके बाद भी वो डिफरेंसेस रह जाते हैं। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पढ़ना है, इसमें समझना है, ठीक है। और इस जो अपोजिशन के स्टेट क्या बोल रहे हैं, तो अगर आप ये पढ़ेंगे, तो इसमें जो अपोजिशन के स्टेट बोल रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि 14 फाइनेंस जो सेंटर इज टेकिंग मोर इन द फॉर्म ऑफ सरचार्ज एंड सेस। जब आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा सरचार्ज और सेस जो हम देते हैं, जैसे कई जगह पे एजुकेशन सेस लगता है, कहीं पे एग्रीकल्चर के ऊपर भी सेस आता है, कहीं पे नेचुरल कैलेमिटी के ऊपर सेस आता है। तो जो सेस जो होता है, जिससे पैसा कलेक्ट होता है, ठीक है, सेंटर कलेक्ट करता है, उसमें स्टेट का कोई शेयर नहीं होता। और जो अपोजिशन के स्टेट है, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि सेस का शेयर एज ए, मान लीजिए 100 रुपीज कलेक्ट होते थे आज से 10 साल पहले, और आज कलेक्ट होते हैं, तो जिसमें सरचार्ज और सेस है, उसका प्रोपोर्शन बढ़ चुका है। हालांकि 14 फाइनेंस कमीशन ने बढ़ाया है 32 to 42, लेकिन सेस एंड सरचार्ज तो डिविजिबल ही नहीं है, तो वी आर नॉट बेनिफिटिंग देम। तो जो उनके आर्ग्यूमेंट है, ये सारे आर्ग्यूमेंट जब फिस्कल फेडरलिज्म पे क्वेश्चन आता है, तो आपको यहां से पता चल के आप वो एक पॉइंट लिख सकते हो फिस्कल फेडरलिज्म में, the state are saying, state argue that the share of cess and surcharge is increasing with the data point, ठीक है, जो आप
बाकी जगह से बाकी आर्टिकल में मिलेगा आपको, आगे वाले इस आर्टिकल में एग्जैक्टली नहीं मेंशन है, आपको नेट पे भी सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो दिस इज हैपनिंग, तो दिस बिकम्स वन पॉइंट, एंड यू आल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इशू दैट स्टेट आर टॉकिंग अबाउट फेडरलिज्म के पर्सपेक्टिव से, दैट हैपन, राइट? दिस यू हैव टू रीड, राइट? देन देयर आर अदर थिंग्स जैसे इंडियन लेबरर ऑन इन इजराइल, तो ये सारे इश्यूज होते हैं, बट डायस्पोरा का टॉपिक वगैरह हमें थोड़ा सा कंप्रहेंसिव करना होता है। दीज कैन गेट इनटू डिटेल कि ये अभी स्पेसिफिक इसराइल में क्या चल रहा है, तो हमें उतना डिटेल कई बार जानने की जरूरत नहीं होती है। वी लुक एट द इश्यूज रेदर देन लुकिंग एट ऑल द न्यूज़, राइट? देन इफ पीएम सेज ही मे अर्न मेटिस विल कम फॉरवर्ड, ठीक है? तो ये आपको फिर बता रहा है कि जो मणिपुर में जो वायलेंस चलता रहा काफी टाइम से, दैट इज समथिंग ऑफ द कंसर्न एंड इट हैज नॉट बीन रिजॉल्व, तो उसके बारे में बात चल रही है। तो ये भी आपको पता चलता है। अब ये पर्सपेक्टिव अब क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी में, ठीक है, आप लिख सकते हैं क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी का ही मैटर है, नॉर्थ ईस्ट का GS3 में आता है, तो आपको जानना चाहिए, ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में नॉट कम डायरेक्टली, क्वेश्चन में कम इनडायरेक्टली कि नॉर्थ ईस्ट सफर्स फ्रॉम मल्टीपल रीजन एंड द वायलेंस के कई रीजन, जहाँ पे वहाँ पे डिस्टर्बेंस है उसके मल्टीपल रीजन है। तो आप बोल सकते हैं कि इथनिक differences हैं, ठीक है? It is not a homogeneous area, then there has been neglected for some time, then there is a dispute with it, ठीक है? और स्पेसिफिक केस में यहाँ पे inclusion of I think one of the tribe in scheduled tribe list, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो वो सारे आपको पता होना चाहिए। वेपन यूज इन लेटेस्ट अटैक in मणिपुर, नॉट मिलिट्री गेट, तो यहाँ पे ड्रोन यूज हुआ था एक्चुअली, तो दैट इज ऑल्सो फर्स्ट ऑफ आई वुड से दैट इज ऑल्सो फर्स्ट दैट वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में पहली बार ऐसा ड्रोन का यूज किया जा रहा है वायलेंस के लिए। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी में का जो बेनिफिट और वो लिख सकते हैं ना, डिसएडवांटेज लिख सकते हैं, उसमें भी काम आप लिख सकते हैं उसको, और वैसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इंटरनल सिक्योरिटी, सो दिस इज समथिंग। नाउ डिस्टिंक्ट पॉइंट फ्रेंड अक्रॉस पार्टी लाइन, तो ये भी उनके बारे में स्पेसिफिक है, वन कैन बी रेड, नॉट रियली रिलेवेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन, ठीक है, यूपीएस। ये हो गया, तो दिस इज इट वी डिस्कस। अब यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का जो इशू है मैंने बताया आपको, तो ये आपके एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन नीड्स फंडिंग, राइट? सो क्लाइमेट चेंज पे जो वन ऑफ द इश्यूज है, इट इज फंडिंग इज द मेन इशू, फंडिंग एंड टेक्नोलॉजी, राइट? Some countries have developed this technology and they also have resources, and Western countries which have developed this technology, they are sort of their private sector want return on that, and at the same time the government जो वहाँ की है वो उतना फंड दे नहीं रही, तो ये इंपॉर्टेंट इशू है। तो आप इसमें पढ़ेंगे हाउ डिफरेंट स्टेक होल्डर कैन एनेबल दैट, हाउ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर इंपॉर्टेंट इन फंडिंग, तो ये सारी चीजें इस हिसाब से इंपॉर्टेंट होता है। तो म्यूनिसिपल गवर्नेंस वगैरह में आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है? जो म्यूनिसिपल एट द फोरफ्रंट ऑफ लोकल गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, तो हाउ दिस कैन बी एनेबल, इसमें एक म्यूनिसिपल बॉन्ड का इशू आता है, ठीक है? हमारे यहाँ म्यूनिसिपल बॉन्ड का जो मार्केट है, जो बॉन्ड इशू किए जाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट भी करती है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी करते हैं। तो जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो बॉन्ड का मार्केट है, उसको बढ़िया बनाया जाए और उसको डेवलप किया जाए और फिर उसको यूज किया जा सके क्लाइमेट चेंज रिलेटेड और बाकी चीजों के प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन आई वुड यहाँ पर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से नहीं दिख रहा है, ठीक है? वंस अगेन देयर आर केसेस एक्सेट्रा। यूएस टू होस्ट फोर्थ क्वाड समिट ऑन September 21। अब न्यूज़पेपर में आप ये देखेंगे बहुत सारा इंटरनेशनल रिलेशन और बहुत इकोनॉमी दैट प्रीडोमिनेट्स, ठीक है? उसके बाद में बोलूंगा प्रॉब्ली इट इज सम वन थर्ड का रेशियो रहता है, रहेगा, वन थर्ड इकोनॉमी हो जाएगा प्रॉब्ली, फिर वजह उसमें से 15-20% का पॉलिटी वगैरह का जाएगा, ठीक है? ये सारी चीजें फिर बाकी मैटर्स होते हैं। वंस अगेन इफ यू डोंट नो क्वाड, व्हाट इज क्वाड, when is it happening, what is this background, what is the significance, तो वो सारी चीजें ऐसे आर्टिकल आप पढ़ेंगे ना, तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती रहती है, ठीक है? धीरे धीरे यू अंडरस्टैंड कि हाँ क्वाड में अभी इस चीज पे बात चल रही है, समिट होने वाला है, क्या उसमें क्या होगा, तो क्वाड के मेंबर कौन है, कॉन्सेप्ट कहाँ से है। Quad is the grouping between your India, Japan, and US. There's one more country. So this is the grouping between the four countries. And the objective is your free and open Indo-Pacific region, ठीक है? तो अभी आपने पढ़ा नहीं है, जब आपको आईआर पढ़ाया जाएगा तो व्हाट इज Indo-Pacific एज ए कंस्ट्रक्ट, ये कंस्ट्रक्ट क्या है, इसको यूएस कैसे सोचता है, इंडिया कैसे सोचता है, इंडिया का क्या विजन है, यूएस का क्या विजन है, चैलेंजेस क्या है यहाँ पे चाइना की तरफ से, तो वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इसमें मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो स्टार्ट में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी, ठीक है? जैसे अब क्वाड क्या है, फिर ब्रिक्स क्या है, फिर ये क्या है, बना क्यों था, क्या सिग्निफिकेंस है, तो वो दिक्कत होगी, ठीक है? सो व्हाट यू कैन, अभी हम आएंगे जैसे एक्सप्लेन्ड एक चैप्टर पेज आएगा, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि वो आप उस पर ज्यादा रिलाई करें स्टार्ट में, क्योंकि वो उसमें आगे मैं दिखाऊंगा आपको हाउ इट एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, एक्सप्लेन नाम ही है उसका। बाकी जगह पे उतना एक्सप्लेनेशन नहीं होता, बैकग्राउंड नहीं होता, वो आपको पता नहीं चलता है, बट यू डोंट हैव टू गिव अप, वट एवर यू अंडरस्टैंड यू कीप रीडिंग, ठीक है? जो भी है जितना पढ़ सकते हैं, बिकॉज दिस हैबिट हैज टू बी डेवलप। फिर यहाँ पर हाँ मिशन मौसम क्या है, जैसे मिशन मौसम, नाउ दिस इज न्यूली लॉन्च्ड,
अब न्यूली लॉन्च है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये मिशन मौसम में हम करना क्या चाह रहे हैं, नाम से भी वैसे पता चलता है। तो इट टॉक्स अबाउट फ्रॉम वेदर फोरकास्टिंग टू वेदर मैनेजमेंट। इसमें जो आर्टिफिशियल रेन है वो कराने के का प्लान भी है, तो वो क्या है। फिर इसमें जैसे 2000 करोड़ की फंडिंग है ओवर नेक्स्ट 2 ईयर। तो कई बार ये नंबर इंपॉर्टेंट, यूपीएससी में प्रीलिम्स में आएगा कि प्रोजेक्ट मौसम में 2 लाख करोड़ की फंडिंग है, तो आपको पता चलेगा कि 2 लाख था कि 2000 था। दैट्स आउट ऑफ समटाइम यू विल रिमेंबर दैट कि 2000 इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं था कि 2 लाख करोड़ दे रहे हैं। तो यू अंडरस्टैंड दैट दैट्स हाउ यू एलिमिनेट क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें आपके यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर है आईएमडी इशूज, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अलर्ट फॉर यूपीएस का। साथ में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मानसून टू बीट रिट्रीट आफ्टर सितंबर 21। तो आपको जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा कि मानसून का अराइवल ऑनसेट होता है, फिर उसका रिट्रीट होता है। जो साउथ वेस्ट मानसून है वो विड्रॉ करता है इंडिया से, जैसे स्टार्ट साउथ से होता है, विड्रॉ नॉर्थ से करता है धीरे धीरे, फिर नीचे से विड्रॉ। तो वो चीजें आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आपको पता चलता है कि दिस इज ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट वी आर रीडिंग इन द बुक्स, it's actually happening in the country and it is being observed by an agency etc. So ये हो गया। Next is the economy page. It is one of the important page. अब इसमें आपको कुछ चीजें याद रखनी है। There are some topic which are explicitly mentioned in syllabus. Whether it is growth से related है। growth में क्या क्या आएगा? growth में आएगा आपका इंडस्ट्री की ग्रोथ, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ और सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग विद इन इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर की ग्रोथ। तो इस पे अगर कोई आर्टिकल है तो वो आपको पढ़ना है, टू सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द फैक्टर व्हिच इम्पैक्ट growth in the country and how we are trying to improve it or maintain it, right, at the same time. That is one topic. Similarly, you have job related to job generation, related to inflation. तो ये दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट, मॉनेटरी पॉलिसी क्या चल रही है, वो सारी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। Then there will be news company specific. That is something you don't have to, that you can skip. Actually, you should skip. Do not waste a lot of time on that. तो यहाँ पे आर्टिकल है रिटेल इन्फ्लेशन एजेस अप टू 3.6% इन अगस्त फ्यूल्ड बाय राइजिंग फूड प्राइस। अब यहाँ पे देखिए कितनी सारी इन्फॉर्मेशन। आप बोलते हैं ना कि मान लीजिए किसी ने बोला मैं नहीं पढ़ूंगा न्यूज़पेपर या नहीं पढ़ूंगी, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि जो सीपीआई है वो कौन रिलीज करता है, एनएसओ रिलीज करता है, ये आपको ये पता चलता है, ठीक है। फिर इसमें बात हुई आईआईपी की कि सीपीआई नंबर या आईआईपी कौन रिलीज करता है, आप सर्च करेंगे एनएसओ करता है, ठीक है। तो आपको दो चीजें, ये सारी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है कौन रिलीज करता है इस इंडेक्स को। फिर इसमें पता चलेगा आपको, हाँ, आपको एक ब्रॉड लेवल भी पता चल रहा है, देखिए इस लेवल पे इन्फ्लेशन है, फैक्ट्री आउटपुट है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगा। फिर फूड नॉन फूड, अब इसमें बहुत सारा वो होता है कि फूड अकाउंट करता है, नॉन फूड अकाउंट करता है, एनर्जी अकाउंट करती है, वो उतनी डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो डिटेल इकोनॉमिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो फोरकास्ट करना चाहते हैं कि इन्फ्लेशन कितनी आएगी। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हाँ इन्फ्लेशन है, ब्रॉडली वी शुड नो। अगर एक ही फैक्टर अकाउंट कर रहा है, जैसे सडनली ऑयल के प्राइसेस 40-50% बढ़ जाते हैं और अकाउंट करने लगता है, तो हमें पता नहीं चाहिए। अदरवाइज इट्स नॉट रियली रिलेवेंट। फूड के साथ इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन हमें इतना पता करना। फिर इसमें देखिए अगर पढ़ेंगे तो जैसे पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ बेटर खरीफ सोइंग, तो आपको वहां पे हम मानसून की बात कर रहे थे, यहाँ कैसे रिलेट हो रहा है। फिर यहाँ पे आपको हाँ पता चलेगा कि हाँ ये द नेक्स्ट वीक द यूएस फेड इज एक्सपेक्टेड टू स्टार्ट कटिंग रेट, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है कि यूएस में मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होगी, तो इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी पे क्या इंडिया सेंट्रल बैंक को स्टार्ट करने, तो हाउ दीज आर रिलेटेड। तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया आपको। देखिए आप ज्योग्राफी के मानसून से रिलेटेड है फूड से रिलेटेड है इन्फ्लेशन, यूएस के सेंट्रल बैंक से इंडिया का सेंट्रल बैंक उसको भी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, और इंडिया के सेंट्रल बैंक को इंडिया के ज्योग्राफी के हिसाब से भी डिसीजन, ज्योग्राफी रेनफॉल के हिसाब से डिसीजन लेना है। तो हाउ थिंग्स आर रिलेटेड, वो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी। और ये सारी अंडरस्टैंडिंग काफी काम आती है इंटरव्यू में पूछ लिया जाए। मीन्स में तो लिखना ही लिखना है, इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि ये कैसे रिलेटेड है। तो अगर आप उस चीज को अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप करेंगे, सिर्फ मंथली मैगजीन से आप याद करने की कोशिश करेंगे, तो दैट वुड नॉट हेल्प। तो एक कॉन्फिडेंस भी नहीं रहेगा आपके पास और नॉलेज तो ऑफकोर्स नहीं होने वाला। तो ये हो गया आपको, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट इस केस में मैं आपको थोड़ा सा ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे टाटा एम्प्लॉय एडिशन स्टेज फ्लैश इन 20, टीसीएस सेट्स ओवर 13,000 जॉब। नाउ टीसीएस इज द लार्जेस्ट एक्चुअली IT company from our country. Now, when it is shedding 13,000 job, that is significant. What is going on? Why this is going on? तो आपको ऐसा जानने की जरूरत नहीं है, वैसे जल्दी इग्नोर करना चाहिए, बट इस केस में बता रहा हूँ how artificial intelligence is changing software development and everything etc. That probably companies are doing. They're not growing very fast, but they're doing it. The revenue is still growing, but they are at the same time they are reducing, employees. तो हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडिंग टू द प्रोडक्टिविटी, तो वो उसका सिग्निफिकेंस है। अदरवाइज मैं बोलूंगा ऐसे इंडिविजुअल न्यूज को आप छोड़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी, इंडिविजुअल न्यूज, कंपनी की न्यूज हमें छोड़ देना है। फिर यहाँ पे जीएनएसएस टोलिंग ट्रांजिशन वर्क्स, तो ये टोलिंग सिस्टम क्या बन रहा है, ठीक है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पूछ लेगा इसमें ये हो जाएगा, इसमें ये नहीं हो सकता है, वो डिफरेंट आपसे डिटेल पूछेगा साइंस टेक में जो क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं इसको फ्रॉम द साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव रादर देन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कितना चार्ज होगा वो नहीं होगा, उसके हिसाब से मैं नहीं बोलूंगा।
तो यहाँ पे ये भी आपको पता चलेगा, ये केस काफी इट हैज बीन इन द न्यूज फॉर सम टाइम, जो सेबी के लीडरशिप के ऊपर एलिगेशन लगे हैं, ठीक है, व्हाट इज गोइंग ऑन, तो वो सारी चीजें आपको पता चलेगी। प्रोमोटर फैमिली डिस्प्यूट ये स्किप कर देना है। प्राइम मिनिस्टर ने बोला इंडिया हैज बिकम एविएशन इंक्लूसिव इन द पास्ट डिकेड, ठीक है, तो ये देख सकते हैं हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर में आप पढ़ सकते हैं कि हाउ एविएशन सेक्टर हैज ग्रोन एक्चुअली, एंड द फ्लाइट्स एंड द एयरपोर्ट नंबर ऑफ एयरपोर्ट हैज इंक्रीज, एंड फ्लाइट्स छोटे छोटे शहरों में भी अभी जाती हैं, उसमें एक स्कीम भी आई थी उड़ान वगैरह वो। फिर ईवी टू बायर कैन अवेल सब्सिडी, तो ये जो ग्रीन एनर्जी क्लाइमेट चेंज के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो आपको पता है कि यू शुड नो कि कुछ स्टेप दिए जा रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं मुझे, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट, बट यू कैन राइट दैट गवर्नमेंट इज गिविंग इंसेंटिव फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यू कैन राइट इन योर आंसर्स, आप लिख सकते हैं, बड़ी कोई स्कीम हो तो आप देख भी सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। तो दिस इज इट, ये इंपॉर्टेंट। हाँ, दिस पेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें दो चीजें करनी है कि पहला तो यू नीड टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द गुड कॉलमनिस्ट जो यहाँ पे लिखते हैं, और उनके आपको याद करना, जैसे प्रताप भानु मेहता इज वेरी रिस्पेक्टेड, वो लिखते हैं, और भी मैं ऐसे नाम बता दूंगा, अशोक गुलाटी हैं एग्रीकल्चर पे लिखते हैं, ऐसे कई जो बहुत ही अच्छे राइटर हैं, उनके आर्टिकल आप स्किप ना करें, वो आर्टिकल तो आप पढ़ें ही पढ़ें। तो ये लिखेंगे आपके पॉलिटी के ऊपर लिखेंगे, बाकी चीजों के ऊपर लिखते हैं, तो उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग विच यू विल गेट फ्रॉम दीज आर्टिकल, which is I would say is not there in magazine etc, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। जैसे मैं बता रहा था आपको, दिस इज अबाउट प्राइवेट एंड पर्सनल लाइफ कि इसमें और भी काफी डिटेल्स हैं, जैसे आप नए पढ़ेंगे ना, आपको दैट SR बोमई केस में सेकुलरिज्म के बारे में क्या बोला था, एंड देयर वर गुड, वेरी गुड कीवर्ड डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे देखिए सेकुलरिज्म का है, हाँ, सेकुलरिज्म इन द कॉन्स्टिट्यूशन नोट दैट स्टेट बाय इटसेल्फ कैन नॉट establish or practice any religion, so these are the things you will get here, where constitution does not recognize, it does not permit mixing religion and state power, both must be kept apart, तो कैसे स्टेट और रिलीजन को अलग रखना है, उनके उसके बारे में भी कमेंट किया हुआ है। एंड ये देखिए यहाँ पे जो वेस्टर्न फिलोसफर है उनका क्या कमेंट है कि देयर इज नो लिबर्टी, पावर ऑफ जजिंग आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, तो ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, दैट इट नीड्स टू बी सेपरेट फ्रॉम लॉ मेकिंग एज वेल एज फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। तो ये सारी चीजें आपको एक, इससे आपको मैं बोलूंगा कि आप रेगुलर पढ़ेंगे तो विद इन फ्यू मंथ्स यू विल बी एबल टू रेज योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इश्यूज विच आर important for your examination to a very high level. So that is the reason you need to read the newspaper. So this is, we are done on this part. Now let's look at your next page. हाँ, यहाँ पर वर्ल्ड में क्या होता है, अदर लॉट ऑफ न्यूज एक्सेट्रा, इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो कुछ इशू जैसे कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, जो गाजा में और ये सब चल रहा है, तो मतलब जो वायलेंस होता रहा कंटिन्यूसली, तो वो तो इंपॉर्टेंट है, आपको जानना चाहिए, दैट इज वन थिंग। द सेकंड इज ए लॉट ऑफ टाइम दे विल बी क्वेश्चंस अबाउट कंट्रीज, तो वो आप थोड़ा सा मैपिंग वगैरह के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर चल रहा है तो गाजा कहाँ पे लोकेटेड है, ठीक है, वो कंट्रीज, वो रीजन, उसकी मैप में लोकेशन क्या है, जैसे वहाँ पे मेडिटेरियन सी में कौन सा कंट्री होता है, कौन सा कंट्री नहीं है, बॉर्डर टच नहीं करता, ठीक है, और वेस्ट बैंक कई बार पूछ लेता है, आई थिंक ये गोलन हाइट्स किस चीज से रिलेटेड है, कहाँ से रिलेटेड है, किस एरिया से रिलेटेड है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है फिल्म्स में, तो मैपिंग के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज इंटरनेशनली बहुत सारी छोटी छोटी, मतलब बहुत सारी उन कंट्री के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और चीजें होती रहती हैं, इवेंट होते रहते हैं, दे मे नॉट बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट सम थिंग्स कैन बी इंपॉर्टेंट, जैसे अभी यूएस इलेक्शन बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज it is one of the very prominent country in terms of global politics, economics, etc. So that is important. Now we come to this page. This is very important page, and especially for students who are beginning their preparation, because this has a lot of background. जैसे health cover for elderly, तो यहाँ पे पूरा आपको समझाया जाएगा कि हेल्थ कवर क्यों किया है, क्या कॉस्ट टू गवर्नमेंट है, वाई द स्कीम मैटर, कैसे करना है, किसको मिल रहा है, तो जो आपको बाकी में जैसे मान लीजिए क्वाड पे लिखा होता है, तो आपको ये आर्टिकल बताता कि क्वाड है क्या, इसका आइडिया कहाँ से आया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बहुत सारी चीजें वो कवर कर देते हैं। सो इफ यू शुड डेफिनेटली रीड दिस पेज, और यहाँ पे जो भी दिया गया है, जैसे ऊपर भी है, ठीक है, रिकॉलिंग एपिक लास्ट समर फ्रॉम अशोका टाइम्स टू नाउ सांची यूरोप, ठीक है, वाई सुपा आर सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट, द स्टोरी क्या है उनकी, तो वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत अच्छा बैकग्राउंड मिलेगा आपको, पहली बार कब बना, कहाँ पे बनाया, बड़ा ये सांची का किसने बनवाया था, क्या स्टोरी है इसके बिहाइंड की, ऑल दोज थिंग्स इन दिस पेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट हु आर starting their preparation. They will get whatever they need there. They would not need to go to the internet to search that. You can read here and very much, start and study. So do not, my advice is, even if you don't like reading newspaper, at least read this page. This is going to be very helpful. And that will, put you in the, आपकी एक habit जो है ना, वो develop होगी धीरे धीरे पढ़ने की. When you will
Then I think there are, all these sports pages which are, uh, I would not say they're not important, I would say, unless there is, some very important, but Olympics वगैरह होता है वो भी यूपीएससी नहीं पूछता है, बट फिर भी आप you can follow that to understand, sometime important issue why, country like ours, which large population, large economy is unable to win medal as much as the smaller countries are winning that medal. वो सारी चीजें कई बार important होती है, otherwise these pages are not important for UPSC. You can simply skip them. That is all. If you guys have any question, I will answer those questions. Okay. So your question is, should you start making notes from the newspaper? And if yes, then how? देखिए, इसमें पहले बात करते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाना और मेंस के पर्सपेक्टिव से नोट्स बनाना। मेंस के पर्सपेक्टिव से हाँ, आप नोट्स बना सकते हैं, बट दोस नोट्स हैव टू बी मेड ऑन द इश्यूज, नॉट ऑन द न्यूज। तो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, लेट्स से अभी इस समय पे क्या चल रहा है कि वेस्ट एशिया के ऊपर, वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहा है, तो एक वेस्ट एशिया के पे किस तरह क्वेश्चन आएंगे इंडिया हमारे यूपीएससी एग्जामिनेशन में? वो इंटरनेशनल रिलेशंस पे आएंगे। तो वेस्ट एशिया का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज हैपनिंग देयर, हाउ इट इम्पैक्ट्स इन कंट्री लाइक इंडिया, वो आप एक न्यूज बना सकते हैं, जैसे हमने आज देखा। अब यूएस इलेक्शन के ऊपर इंडिया में नहीं है, बट हाँ, यूएस का जो सिस्टम है, कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, उसका कंपैरिजन इंडिया से पूछा जा सकता है। तो वो आप, देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग नोट्स अबाउट दैट, बट वेस्ट एशिया और इंडिया क्या रिलेशन है, उस पर क्या क्वेश्चन है, वो बना इंटरनेशनल रिलेशन। नो, दैट इज स्ट्रिक्ट नो नो, अनलेस यू हैव, मतलब मेरी एडवाइस ये है, अनलेस यू हैव गॉन थ्रू द बेसिक्स, ठीक है, आप जैसे क्लास ज्वाइन की, तो अनलेस आपकी क्लास हो जाती है, जब तक आप उस टॉपिक पे नोट बनाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड इन विच फॉर्मेट दिस सब्जेक्ट रिक्वायर यू टू राइट द आंसर, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो डू नॉट मेक नोट्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। स्पेसिफिकली आप 26 में दे रहे हैं, राइट? आप 26 में, राइट? तो मैं तो नहीं बोलूंगा आप तब तक उन चीज के लिए नोट्स बना, बिल्कुल मत बनाइए, बिकॉज यू विल एंड अप, habit of reading, develop an understanding, ठीक, widen your horizon, think, analyze and criticize everything. You need to develop that, because you what will happen ना, आप इतने नोट्स बना लोगे और बाद में पता चलेगा ये तो काम पे ही नहीं, ठीक, तो वो आपको नहीं बनाए। अब बात करते हैं कि प्रीलिम्स के, तो हमने मेंस के लिए बात कर लिया, इशू बेस्ड नोट्स बनाने हैं, और आपका, मेरी एडवाइस है, जब आपका सब्जेक्ट हो जाए क्लास में, उसके बाद बनाइए, देन यू विल बी एबल टू मेक मच बेटर नोट्स, अंडरस्टैंड दैट। अभी बनाएंगे तो मेहनत भी होगी और कुछ नहीं, इसलिए हम बोलते भी हैं पहले क्लास नोट्स होने चाहिए, because faculty has that experience, they understand what is important, they know the examination, they will tell you how to read it, what to read it, to what extent and what depth you should read it, ठीक है, वो क्लास में कवर होता है। तो सेकंड थिंग, अब बात करते हैं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव पे। तो प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी नोट्स बनाए जा सकते हैं, बट दैट हैज टू बी समथिंग लाइक, बिल्कुल, मतलब एक, आई वुड से कि एक दिन का जो न्यूज़पेपर है, आपको इतना बनाने का, वो एक पेज भी क्रॉस नहीं करना, इतना शॉर्ट, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना। और अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो आपको नहीं बनाना, ठीक है। फ्यू पीपल हैव हैव मेड दिस सॉर्ट ऑफ नोट। अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो मत बनाइए, लेकिन अगर बनाना है तो इससे आपको ऊपर नहीं जाना। और अगर आप नहीं बना पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देयर आर कंपाइलेशन मेड बाय सो मेनी इंस्टीट्यूट एंड सो मेनी, इवन आवर क्लासेस विल कवर करंट अफेयर फॉर प्रीलिम्स, तो यू डोंट हैव टू मेक नोट्स फॉर प्रीलिम्स। If you insist that no, I will have my own note just to remember that I remember, मैं उनको, मुझे याद ज्यादा रहते हैं, मैं बनाना ही चाहता हूँ, तो ये रूल है कि वो एक पेज के ऊपर नहीं जाएगा, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लिखेंगे कि ये है, जैसे मौसम, प्रोजेक्ट मौसम 200 करोड़, वेदर फोरकास्टिंग, वेदर मैनेजमेंट, आर्टिफिशियल रेन, प्रॉब्ली इतने वर्ड से वो आगे नहीं जाएगा, फिल्म के पर्सपेक्टिव से बनाया जाएगा, इसके आगे नहीं जाएगा। तो अगर आप वो बना पाते हैं ठीक है, नहीं बना पाते तो देयर इज नो, एवरी ईयर देयर, आई वुड से, एटलीस्ट उस लिस्ट में से जो भी होता है उसमें से प्रीडोमिनेटली ऐसे बच्चे होंगे जो मेंस का नोट्स नहीं बनाते, जो यूपीएससी के लिए पढ़ते, वो किसी कंपाइलेशन से पढ़ते हैं। तो हमें हर चीज खुद नहीं करनी है, मॉडर्न सोसाइटी में सारा काम खुद नहीं करते, वी डू सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स, वी स्पेशलाइज, वी डोंट ग्रो अवर फूड, वी बाई एंड, so that's a specialization of labor. Let someone else do it. They have specialized into that. They're doing that. You have to read, remember, and write. वो कोई नहीं कर सकता। पढ़ना आपको, लिखना आपको, प्रैक्टिस आपको, नोट्स कोई और बना सकता, वो बना ही जाना, तो वो है। मैं इसके पर्सपेक्टिव से मैं बोलता हूँ कि आप बना सकते हैं, तो बहुत ज्यादा इशू है, बट वो भी जब मैंने बताया आपको कि आप एक अंडरस्टैंडिंग उस सब्जेक्ट की हो जाए, तब जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पे न्यूज़पेपर, तो मेरी एडवाइस ये है, फिजिकल कॉपी को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, न्यूज़पेपर से, और उसको पढ़ें, दैट विल बी मच। इलेक्ट्रॉनिक्स थोड़ा सा, इट इज़ नॉट गुड फॉर द आइज ऑल्सो, ठीक है, हम वैसे भी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम पे हैं, स्क्रीन टाइम, तो अच्छा रहेगा। बाकी कुछ लोग डिजिटल भी बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, बट ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह ये सारे
इंटरनेट पे भी डिफरेंट ग्रुप्स तो मिल जाते हैं अगर आपको सॉफ्ट कॉपी। 2026 में भी जो बच्चे दे रहे हैं 2025 के लिए तो कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रेटजी है क्योंकि कुछ टाइम कम है। 26 के लिए अभी सफिशिएंट टाइम। आपकी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, पहले तो आपको कॉमर्स बैकग्राउंड, आप ऑप्शनल क्या ले रहे हैं, ये ऑप्शनल PSI ले रहे हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया, यू नो दैट, तो पहली चीज ये है कि आपको जो क्लास होती है, नेवर मिस द क्लास अनलेस यू हैव टू, एब्सोल्युटली हैव टू, कि आप नहीं आ सकते तो आपको क्लास नहीं मिस करनी। अगर ऑफलाइन आपकी क्लास मिस भी हो गई तो हम रिकॉर्डिंग देते हैं, ठीक है, वो आप देखिए, उसके नोट्स जो बनवाए जाते हैं वो बनाइए, आप उनको रिवाइज कीजिए, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए क्वेश्चन। तो ये धीरे धीरे, क्योंकि आपकी 26 की क्लास भी उसी पेस से होगी, हो सकता है आप कॉलेज में हो, राइट, तो उसी पेस से होगी, आपको बहुत ज्यादा प्रेशर अभी नहीं दिया जाएगा। तो आपको वो करना है। दूसरा काम ये है, आपको ऑप्शनल में अगर डिसाइड कर लिया है तो ऑप्शनल की हम बोलते हैं कि आप क्लासेस करें, ठीक है, डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट फैकल्टी हैं जिनका अपना नाम है, आप टॉपर्स के इंटरव्यू देख सकते हैं, जैसे PSI के जो टॉपर है उन्होंने क्या सजेस्ट किया है उसको कर लें, बिकॉज उसमें एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की डेवलप होती है, जरूरत होती है, एंड दैट मे नॉट बी, नॉट एवरीवन इज केपेबल ऑफ डेवलपिंग दैट ऑन देयर ओन। देयर इज नो हार्म इन टेकिंग दैट हेल्प इन टर्म्स ऑफ, जैसे आप GS की कर रहे हैं, ऑप्शनल की भी कर लें, उससे क्या होगा, आपके सिलेबस पूरा होगा। अच्छी फैकल्टी है अगर वो सिलेबस पूरा करेंगे, नोट्स बनवाएंगे आपको, और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह भी करवा, तो आपकी एक सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी। तो ये करना। और जिसने नहीं डिसाइड किया है उसको मैं बोलूंगा कि अब अगर आपने एनरोल कर ही लिया क्लास, तो यू कैन लुक एट द डिफरेंट ऑप्शनल, जैसे GS की क्लास हो गई, पॉलिटी की क्लास हो जाती है, IR की हो जाती है, तो यू कैन लुक एट, थिंक अबाउट, इफ यू लाइक पॉलिटी एंड IR, then you can think about PSI. Let's say if you've gone through the syllabus, attended the classes of, Indian society portion of GS, then you think, okay, if I really like this subject, maybe, and this subject is also scoring. So like और scoring वो दूसरे भी पैरामीटर्स होते हैं जिस वजह से हम जी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। तो उस हिसाब से दे शुड डिसाइड देयर ऑप्शन एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। तो आपको GS में मैं यही बोलूंगा, अभी जो क्लास में होता है बेसिक्स होता है, न्यूज़पेपर रीडिंग कीजिए, और क्लास के जो नोट्स होते हैं उनको रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, ठीक है, जो भी हो सकता है, और ऑप्शन को खत्म कीजिए। तो योर टारगेट शुड बी टू फिनिश द ऑप्शन, अंडरस्टैंडिंग, फिनिश मतलब अंडरस्टैंडिंग, तो उसको आप डिस्कस कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उनको ट्राई कीजिए, तो वो सारी चीजें आपको करना है, वो अभी आपकी प्रायोरिटी है। तो ये कर सकते हैं। फिर मान लीजिए ये भी हो सकता है कि आपकी जो इंग्लिश के ऊपर अभी, इसमें मेंस में जो लैंग्वेज है उसका बहुत इंपॉर्टेंस होता है, तो आपके जो वर्ड्स हैं वही आपका हथियार हो। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जिस भी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं ज़्यादातर, तो इंग्लिश में आपकी कमांड अच्छी नहीं है, आप उस चीज़ को डेवलप करें, ठीक है, यू वर्क ऑन दैट, कि अपनी राइटिंग स्किल इस चीज़ में मैं डेवलप करूँ। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि ऑन फिर वो 26 में जाके जब इंटरव्यू की कॉल आती है तो तुरंत तुरंत करना मुश्किल पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों पे एक काम कर सकते हैं, एक ओवरऑल पर्सनालिटी अपनी, ठीक है, वो सारी चीज़ें पे आप, तो एंड इट इज ए डेली, इफ यू कीप डूइंग वर्किंग ऑन इट लिटिल बिट, आपकी प्रोग्रेस। जिस क्लास परस्पेक्टिव मैंने आपको बता दिया, क्लास मिस ना कीजिए, क्लास अटेंड, और तो आई एम डायरेक्टर इन द इंस्टीट्यूट, एंड I will take some session specifically on the mentorship and prelims के जो questions होते हैं उनके ऊपर मैं session. There's nothing you guys can leave. I'll take some, probably there's some online student उनके कुछ question. ठीक है? Online students, if you have any question you can ask. I am looking at the chat section. Okay, so सिमरन मजूमदार हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया है, बिटवीन द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस विच न्यूज़पेपर शुड बी फॉलो। ओके, कौन सा न्यूज़पेपर है? देन आई एम गेटिंग फौजिया नाज हैं, और उन्होंने क्वेश्चन किया विच न्यूज़पेपर इज गुड टू स्टार्ट। ओके, तो आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू गाइस आर आस्किंग अबाउट हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, दोनों ही न्यूज़पेपर अच्छे हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है, हिंदू की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ होती है कंपेयर टू इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ी सी लैंग्वेज आपको इजियर मिलेगी, हिंदी में टफ मिलेगी। दूसरा, जो हिंदू न्यूज़पेपर है वो गवर्नमेंट का ज्यादा क्रिटिकल होता है। नाउ इंडियन एक्सप्रेस आई फाइंड इज ए लिटिल मोर बैलेंस, ज्यादा बैलेंस होता है, और वो अगर गवर्नमेंट को चर्चा करती है तो वो भी करता है। और आप जिस एग्जामिनेशन में अपेयर हो रहे हैं उसमें आप गवर्नमेंट से एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं, तो आपको एक बैलेंस ओपिनियन तो होना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप गवर्नमेंट कुछ कर रही है, ऑफकोर्स वी आर yet to be reached probably a middle income level, and we are far away from developed country status, probably may not reach it, I don't know, for 30-40 years, but then the government is doing with whatever resources they have, so you need to have a balanced opinion। अगर कुछ अच्छा किया है तो गवर्नमेंट का बैलेंस। तो इस हिसाब से इंडियन एक्सप्रेस के दो फायदे, इजियर लैंग्वेज, दूसरा बैलेंस, मोर बैलेंस ओपिनियन, एंड थर्ड इज ऑल्सो चीपर। तो आप इंडियन एक्सप्रेस को उस हिसाब से प्रीफर कर सकते हैं। मेरी एडवाइस ये है, स्टार्ट किया है इंडियन एक्सप्रेस से स्टार्ट करें, उसकी लैंग्वेज से अगर आपको लगता है कि ठीक है,
हिंदू भी ट्राई कर सकते हैं। अगर हिंदू में अगर आपको बोलना है कि नहीं मुझे ये सही नहीं लग रहा है इसमें कुछ, तो आप स्विच कर सकते हैं। अदरवाइज इंडियन एक्सप्रेस is much better if you have challenges with the language setup. Any other question? I'm here, so I will answer all the questions. Please mention. Okay. So मेरे पास रिद्धा कादी ने क्वेश्चन किया है हमें। शी इज अपियरिंग इन 2027 एंड शैला आई होप मैं प्रोनाउंसिएशन सही ले रहा हूँ नाम का। तो उन्होंने पूछा 2026 के स्टूडेंट को। देखिए अब बात यह है कि करंट अफेयर कब से प्रिपेयर करना है, एक क्वेश्चन है। पर दूसरा ये है कि न्यूज़पेपर कब से स्टार्ट करना है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट आपको आज से ही लगानी, दैट यू हैव टू रीड। करंट अफेयर हम किस टाइम से प्रिपेयर करेंगे, किस टाइम का एग्जामिनेशन में आएगा, वो लास्ट 12 महीने का हम बोलते हैं ज्यादातर करंट अफेयर प्रिपेयर करने का। कुछ पीछे से भी कर सकते हैं आप उसमें और भी सेफ होने के लिए, वेदर इट इज प्रीलिम्स में, पर हम 12 महीने नॉर्मली बोलते हैं। बट द अंडरस्टैंडिंग, अगर आप 27 में पीरियड आज से पढ़ना शुरू करें तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी आज से 3 सालों में जो आपको एग्जामिनेशन में होती है। तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, आपके जो आर्ग्यूमेंट करने का तरीका है, आपको कैसे लिखना है, सारी चीज डेवलप होंगी। इसलिए चाहे 26 और 27 आपको न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देना है। यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। करंट अफेयर हमें कब से प्रिपेयर करना है, किस टाइप का एग्जामिनेशन आएगा, वो सेपरेट क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि आपको ये समझना होगा बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चेंज नहीं होती, जैसे वुमेन्स इशू है, ठीक है। और मैं बोलूंगा कि और भी जो सारी चीजें, इट्स नॉट दैट दे चेंज ईयर टू ईयर, द इशू इज more or less the same. There are new event, there are new incident which happen, and there are sometimes new laws. अदरवाइज द इशू इज मोर और द सेम। तो आप अगर उस पर लिखेंगे तो आज भी वही लिखेंगे, प्रॉब्ली आंसर लिखेंगे, और अगर 1 साल बाद लिखेंगे तो प्रॉब्ली 1-2 लाइन बदल जाएंगे, उसके अलावा कुछ ज्यादा बदलता नहीं है। तो इसलिए आपको अभी से स्टार्ट करना है ताकि वो सारी चीजें आपको पता चल जाए। अयान पूछ रहे हैं कि वो थोड़ा सा कंफ्यूज हैं अभी कि न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और उनको लगता है जब वो वर्ल्ड से जाते हैं और एक्सपीरियंस से आते हैं सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अयान तो मैं वही बोल रहा हूँ कि प्रॉब्ली ना आप अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो सिलेबस देखना है, सिलेबस में जो है वो आपको पढ़ना है, ठीक है। आप अभी बाहर का ना पढ़ें। दूसरी चीज ये है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो देखें आप, जैसे मेंस के क्वेश्चन देख किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल में, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पॉलिटी में, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स में, इंटरनल सिक्योरिटी में। तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि व्हाट आर द सॉर्ट ऑफ टॉपिक विच आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड दीज आर द इश्यूज विच आर इंपॉर्टेंट रेदर देन टॉपिक इंसिडेंट जो न्यूज़पेपर में आते हैं। तो एंड आई वुड एडवाइस कि जब तक आप वो चीजें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, आप प्रॉब्ली नोट्स मेकिंग पे ना जाएं। वंस यू गेट कंफर्टेबल, ओके आई थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट, आई नीड टू रीड दिस, वंस यू गेट दैट हैबिट, ओके दिस इज व्हाट आई नीड टू रीड, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट आई एम रीडिंग, आई एम कंफर्टेबल विद दैट, आई डू नॉट हैव कंफ्यूजन, एंड वंस यू डू द क्लासेस देन यू कैन स्टार्ट मेकिंग नोट्स। सो रीड एंड लुक एट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि क्या इंपॉर्टेंट है, और सिलेबस को देखिए, उससे आपको पता चलेगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। देयर आर नो फर्दर क्वेश्चन। Okay. Thank you, everyone. Thank you, Riddha. Thank you, Fozia. Thank you, Vaibhav, Ayan, everyone for joining this class. We'll end the class and prepare well. I hope you found this session useful. Please just write in the comment section if you found this session to be useful. Okay.